Hello friends, welcome back to our YouTube channel Explore with Fun. Today we will start the chapter number 5th of NCERT, that is Fundamental Unit of Life. Now you all are thinking that what is the fundamental unit of life? So the fundamental unit of life is basically a cell. So now you will think, what is cell? A cell is a smallest particle from which a living organism is made up of, like we. Example, cell combine and make tissues combine and make organ combine and make organ system, and organ system combine and make a human body like us. So cell are the means we can say that cell are the building structure of a living organisms. So let's come to the point. While examining a thin slice of cork, so friends, you know what is cork? Cork is a means जो पेड़ की ऊपर की छाल होती है वो cork कहलाती है. So there was a scientist named Robert Hooke. He saw that the cork resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartments. Means when he saw the cork in his own invented microscope, he saw many little compartments and he saw there a structure like a honeycomb. Honeycomb का आप मतलब जानते होगी, मधुमक्खी का छत्ता. अ कॉक इज़ अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री. देखिए ये वही लाइन है जो मैंने आपको बताई थी. आई हैव टोल्ड यू दैट अ कॉक इज़ अ मीन्स हम लोग कह सकते हैं पेड़ की अपल की छाल. सो he invented this in 1665 and he was the first man to discover the cell. He made this chance observation through a self-designed microscope. So I have told you that he made his own microscope and he discovered the cell by his own microscope. And Robert Hooke called these boxes a cell. Means जो उसने जो boxes देखे थे little compartment वो उनको cell बुलाता था. So cell is a Latin word which means a little room. Means cell जो है वो हमारा Latin room word से आया है, उसका मतलब है little room. This may seem to be very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. ये एक बहुत छोटा ही इंसिडेंट दिखता है लेकिन ये छोटा है नहीं, ये साइंस की हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा है. मीन्स वी कैन से इट इज़ द मीन्स हम लोग कह सकते हो कि इससे हम लोगों को बहुत सारी स्टडीज़ साइंस के आगे में करने में आसानी रहेगी. तो cell is what? Cell, I have told you, if anybody will ask you what is cell, so you can tell that cell is a basic structure from which a living organism is made up of. So let's come to the point. What are the living organisms made up of? ये वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया था, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ. तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? सो आई हैव टोल्ड यू दे आर मेड अप ऑफ सेल. सो सेल, ओके. So now let's go to microscope. So what is microscope? First of all I want to say that you cannot see the cell by your naked eyes. मतलब कि हम लोग अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं ये सेल को. We need an instrument that is called a microscope. So microscopes of are 3 types. ये यहाँ पे एक ही टाइप दे रखा है बेसिकली, लेकिन मैं आपको 3 टाइप्स बताता हूँ. फर्स्ट पार्ट होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, सेकेंड होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड थर्ड होता है इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप. First microscope, that is simple microscope, we can see only means हम लोग ज़्यादा जूम करके नहीं देख सकते हैं. और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप से थोड़ा ज़्यादा जूम करके देख सकते हैं. और जो इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप होता है वी कैन सी देयर एक्स्ट्रा जूम्ड, मतलब कि हम बहुत ज़्यादा जूम करके उसमें चीज़ों को देख सकते हैं. So now let's go to the another points. So there is an activity with the onion peel. Means when you will take up onion and if you will keep it in a microscope, then you will observe these compartments. So what are these compartments? These compartments are called cell, and this small dot you can see, these are called nucleus. न्यूक्लियस के बारे में भी हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, सो इसलिए अभी डिस्कस नहीं करते हैं. सो लेट्स मूव ऑन. सो व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? दीज स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर. मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर होते हैं वो एक दूसरे के एकदम मीन्स एक दूसरे के सेम दिखते हैं, एक दूसरे के साथ दिखते हैं. टुगेदर दे बिफॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ओनियन बल्ब. जो एक्टिविटी दे रखी है उसी पे इन लोगों ने बताया है कि जब वो लोग सारे स्ट्रक्चर एक साथ कंबाइन हो जाते हैं तो वो एक ओनियन बल्ब बना देता है. ओके फ्रेंड्स,
These small structures we see are the basically the building unit of onion bulb। मीन्स हमने बताया था ये ओनियन बल्ब के सेल कह सकते हो एक तरीके का, मतलब कि ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं जिनसे ये ओनियन बना है। सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। मैंने आप लोगों को बताया था जो सेल की डिस्कवरी करी है वो रॉबर्ट हुक ही ने करी है। ही ऑब्जर्व्ड द सेल इन अ कॉक साइज विद द हेल्प ऑफ प्राइमेटिव माइक्रोस्कोप। प्राइमेटिव मतलब अपना खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप। And there was another scientist also named Leeuwenhoek in 1664. With the improved microscope, he discovered the free living cell in pond water for the first time. तो मतलब कि जो रॉबर्ट हुक के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए थे ल्यू वैन होक। इनने अपने एक माइक्रोस्कोप इम्प्रूव, मतलब कि जो रॉबर्ट हुक से थोड़ा इम्प्रूव माइक्रोस्कोप उनने यूज़ करा था और उन्होंने पॉन्ड वाटर में फ्री लिविंग सेल्स की डिस्कवरी करी थी। मतलब कि जो सेल्स हैं वो फ्री लिविंग हैं। एंड now there is another scientist named Robert Brown in 1833। he discovered the nucleus in the cell। अब न्यूक्लियस क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। Now there was also the another scientist named Purkinje in 1839। he coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell। मतलब कि जो हम लोग कह सकते हैं सेल का जो एक्स्ट्रा वेस्ट होता है जो वो फ्लूइड तरीके से निकलता है उसको उन्होंने एक टर्म दे दिया दैट इज नेम एज प्रोटोप्लाज्म। द सेल थ्योरी दैट all the plants and animals are composed of the cell theory that all the plants and animals are composed of cells and that the cells is a basic unit of life was presented by two biologists named Sachtliden and Sachwan। मतलब कि इन्होंने ही सेल थ्योरी को डिस्कवर करा है दो साइंटिस्ट ने, दो बायोलॉजिस्ट थे, दैट इज सैचलिडन इन 1838 एंड सचवान इन 1839। द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय विर्को 1855। मीन्स ये उनने फर्दर एक्सपेंड कर दी, मतलब कि बाद में उनने खूब विस्तार रूप से एक्सपेंड कर दी दैट विर्को 1855 बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब कि सेल से भी पहले कुछ था, मीन्स बहुत छोटा स्मॉलेस्ट, उनसे जो सेल आए हैं वो अराइज हुए हैं। सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1854। मैंने आपको बताया था देयर वाज अ 3 टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप। सो जो इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई है वो 1940 में हुई है। इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स वेरियस। मैंने आपको बताया था जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को देखने का मन करता है, मतलब कि जो साइंटिस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में जाते हैं किसी चीज़ के, तो वो लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स का प्रयोग करते हैं। ओके, द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोप। जो लेंस होते हैं, लेंस जैसे जो हम लोगों के स्पेक्टिकल्स होते हैं उसमें भी लेंस होते हैं, जो इस लेंस की डिस्कवरी बहुत ही मायने मानी गई। जैसे जो माइक्रोस्कोप होते हैं उसमें भी लेंस होते हैं बहुत डीप जिससे हम लोग देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, so the invention of magnifying lenses led to the discovery of the microscopic world। it is the known as the single cell may constitute a whole organism in amoeba। amoeba एक single celled organism होता है और you can say it is a unicellular organism। इसमें खाली एक ही सेल होता है। so now let's go move front। कैनोप्लाज्म, पैरामोसियम एंड बैक्टीरिया, दीज सेल आर द यूनिसेलुलर। मैंने आपको बताया था यूनिसेलुलर आर द दोज ऑर्गेनिज्म दे हैव ओनली वन सेल। The organisms are called unicellular। Now I will tell you see what is unicellular। Unicellular means uni मतलब single, मतलब कि एक, and on the other hand many cells groups joined in a single body and assume different function in the form of various body parts in multicellular organisms। अब दो तरीके के सेल्स होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का होता है एक सेल से जो चीज़ बनी हुई है, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसका मतलब मीन्स बहुत सारे सेल एक साथ कंबाइंड होके उसको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। सो मल्टी मीन्स मैनी, सच एज सम फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कैन वी फाइंड आउट द नेम ऑफ सम मोर यूनिसेल? यस, यूनिसेलुलर मतलब कि हम लोग कह सकते हैं ब्रेड, एंड इन multicellular we can say that we are also multicellular organism because we are made up of many cells। so every multicellular organism has some common form, a single cell। how cells divide to produce a cell of their own kind। okay, all cell thus comes from the pre-existing cells। जो हम लोगों के पहले वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विर्को। इन्होंने बताया था कि जो सेल अराइव होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइव होते हैं। ओके फ्रेंड्स,
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आगे का, और तब तक कि आप लोग भी खेलने जाइए और मैं भी खेलना चाहिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, और लाइक बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, जैसे कि हम लोगों को करेज मिलता रहे और हम लोग ऐसी नई नई वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।